Good morning, dear students. This is second lecture of model auxiliaries. In the past lecture, lecture number 1, I have given you the definition of model auxiliaries. Maybe you may have become bored with that. Maybe you may have think at that time that it will not be in our examination, but that is the base for explaining the things. As I have already told you, my goal is to explain you from beginning to end, from A to Z. Now this lecture is very helpful for you from the examination point of view. From the examination point of view, it is very, very important. But before starting my topic, I once again greet all of you from the free of cost channel Salim Sir's Academy English for All. I hope that all of you may be fine by the grace of Almighty Allah. As I told you that this channel is for all, English for all. But there I will cover inshallah the syllabus of 10th class, 12th class, BG, that is graduation, Bachelor of Graduation, particularly from Kashmir University, and JKSSB. The syllabus of JKSSB will be covered in complete, don't worry. There, I hope that you will be able to get more marks in JKSSRB with the help of this, as this is the syllabus of JKSSRB. You can see this one is for the junior assistant. I think that same is for accountancy assistant and for other matric or 12th class, matric or 12th, where there is matric or 12th base. There is little difference, and we will also cover that portion, whatever will be the different portion. But before starting, I hope that you will subscribe my channel here and you will watch this lecture from beginning to end. I hope that you will get information. I also hope that you will share with your friends, with your relatives. Also, you will watch all the uploaded videos upon my channel. Okay, now we will start our topic, that is model auxiliaries. This lecture second, because we have completed the lecture first. Those who have not seen the lecture first, they will watch that before watching this one, because there I have told you the definition. I have explained you the definition, that what is model auxiliary, why they are used, what is difference between model auxiliary and helping verbs. And I hope that you will watch that video also. But this one is very, very important, this lecture, from the examination point of view. If anybody wants this very short, precise lecture upon the model auxiliaries, this will be helpful for that. Okay. I have already told you that the model auxiliaries, they are can, could, may, might, shall, should, will. And there are some also, but these are important ones. It is known to you that it is my habit that I like to explain in charts, because with the help of chart it becomes easy for the students to comprehend the things. यानी कि मेरा तो ये आदत ही है, मैं ज़्यादातर चार्ट से ही पढ़ाता हूँ. मैंने आपको बोटेनिक्स भी चार्ट में पढ़ाया था, तो मैंने ये किसी ग्रामर से उठाया है, ये खुद मैंने नहीं बनाया है. तो मतलब यही सोच के कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर चार्ट जैसा है. जैसे आप देखो, आप कैन, मैंने आपको पहले ही कहा, जो कैन है ये मॉडल ऑक्सिलरी है. और मैंने आपको कहा भी है कि इसके हर किसी मॉडल ऑक्सिलरी के डिफरेंट यूज होते हैं. ऑल द मॉडल ऑक्सिलरीज हैव सो मेनी यूजेस. नाउ वी विल सी द यूज ऑफ द कैन. Usage, yes, this is the usage of the model auxiliary. Now, what is usage of can? Ability. It shows the ability. And what it shows? Permission. And what it shows? Possibility. ये आपको याद रखना है. मगर मैंने आपको कहा है कि और भी जब हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ भी कोई परमिशन दिखाएगा, कोई पॉसिबिलिटी दिखाएगा, परमिशन, पॉसिबिलिटी, परमिशन.
मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि लेक्चर 1 में ये तो मतलब दिखाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो सेम चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. I have told you that they are used for the same purpose sometimes, but there is little bit of difference. As I have told you in the very beginning in the first lecture, you can see now yourself that what is the difference. आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है. अगर ये भी एबिलिटी दिखा रहा है, ये भी एबिलिटी, मगर डिफरेंस क्या है, यू कैन सी दैट. हाँ देखो, कैन एबिलिटी, ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डांस वेरी वेल. There is ability in him that he can dance, but it is not necessary only for, it can be used for positive, it can also be used for negative. He can't sing, यानी कि उसमें तो ये ability है नहीं. Okay, I think that you have understood this. Now there is permission. It is used for permission. As you say, may I come in, sir? You can use also, can I come in, sir? Now what is difference? You can see. Asking for and giving. Can I smoke here? Less formal than may. You can see. अब आपको समझ में आएगा, ये भी होता है इस्तेमाल परमिशन के लिए, मे भी होता है और कुड भी होता है. अब फर्क क्या है, यहाँ लिखा हुआ है लेस फॉर्मल देन मे, यानी कि मे से ये बहुत, इसमें ज़्यादा फॉर्मलिटी नहीं है. यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा. हाँ देखो क्या है मेरे कहने का मतलब ये. कैन आई स्मोक हियर, आपका कोई दोस्त है, आपने सिगरेट निकाला है और इसको जलाया भी है, फिर आप उसे कह रहे हैं कैन आई स्मोक हियर. आपने जलाया भी है, आपको मालूम है वो आपका दोस्त कुछ नहीं आपको कहेगा, ही विल नॉट से यू नो. यानी कि आस्किंग फॉर एंड गिविंग, आपको मालूम है वो आपको परमिशन देगा. अब आपने ऐसे ही कहा फॉर्मेलिटी के लिए. मिसाल के लिए आप अपने घर जाते हो, ये हमारे मतलब रिलीजन में भी है, इस्लाम रिलीजन में भी है, जब आप घर जाएंगे तो वहाँ ना करना चाहिए. बदकिस्मती की वजह से आप नहीं करते हैं वो अलग बात है, मगर ये हमारे रिलीजन में भी, अगर आप इवन अपने घर में जाएंगे वहाँ भी ना करना चाहिए. तो अब जब आप ना करेंगे तो उसका माने है क्या, वो आपको अंदर आने नहीं देंगे? नहीं, आप मतलब ये मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आप करते हो, या आप किसी के मतलब कोई आपका अपना होगा, आप उनको मुझे इजाज़त है, क्या वो आपको इजाज़त नहीं देंगे? अब वो कहेंगे हाँ हाँ आओ, वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे मैं, ये कि कैन आई कम इन, कैन, ये फॉर्मल यहाँ ज़्यादा नहीं है. समझ में आ रहा है? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. अब ये पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है. कैन पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है. कैन इज ऑल्सो यूज फॉर पॉसिबिलिटी, बट विच पॉसिबिलिटी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, नॉट प्रैक्टिकल वन. इट इज थ्योरेटिकल. अब आप कहेंगे सर व्हाट डू यू वांट टू सी? एनी वन कैन विन ए लॉटरी, यानी कि एनी बॉडी कैन विन द लॉटरी. देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी दैट हु विल विन, विच क्वालिटी देयर शुड बी इन हिम. ये तो नहीं है कोई भी. मिसाल के 10 आदमी 20 आदमी लॉटरी खेलेंगे तो किसी ना किसी को जीतना ही है. वहाँ प्रैक्टिकलिटी नहीं है, नहीं वो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. I think that you have been able to understand can. एक बार याद रखना, मुझे फिर से ये पढ़ाना है, अभी मैं टेबल पर पढ़ा रहा हूँ. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, I will teach in that lecture in brief. You will see there. I will explain things. Then could also shows ability, but he has also shown the ability. इसने भी ability दिखाया, can भी. अब के फर्क क्या है? इन द पास्ट, ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, मुझे लग रहा है पास्ट क्या कहते हैं टेनिस में, मतलब वहाँ हमने लिखा है कि जो एबिलिटी होगी, जो हैबिट होगा, पास्ट इंडिफिनिट वहाँ इस्तेमाल होता है. जो पास्ट में कोई आपका आदत होगा, हैबिट होगा, और जो प्रेजेंट में आपका कोई हैबिट होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट. इसी तरह यहाँ कुड भी इस्तेमाल होता है एबिलिटी, बट इन द पास्ट. जो आपकी एबिलिटी थी पास्ट में, आज नहीं है. द एबिलिटी विच वर यू इन द पास्ट, वट एवर यू आर डूइंग कंटिन्यूसली इन द पास्ट, आर द एबिलिटी विच यू हैव इन द पास्ट, बट यू हैव नॉट दैट एबिलिटी एट दिस टाइम. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा. अब एग्जाम्पल से आपको समझ में, आई कुडंट सिंग वेल व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड.
या यू कुड सिंग वेल व्हेन यू वाज ए चाइल्ड, बचपन में आप में ये एबिलिटी थी या नहीं थी। आज तो मतलब उसका अपोजिट होगा। आई थिंक दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। और दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन। कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन। कुड आई स्मोक हियर, हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है, मैंने कहा है कि कैन भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, कुड भी होता है। आप कुड क्या है, अब आपको समझ, मतलब उससे थोड़ा पोलाइट है, मतलब थोड़ा डर के ही आप कहेंगे इसको। आपको लगेगा क्या मालूम है इजाज़त देगा या नहीं, मतलब थोड़ा मिसाल के लिए वहाँ आपका कोई फास्ट फ्रेंड था, आप तो आपने उसे कहा है। अब आप गाड़ी में हो, मतलब वहाँ आपका कोई ज़्यादा मतलब वो आपको क्लोज नहीं होगा, या मिसाल के लिए कोई किसी को आपने गाड़ी में उठाया है, तो अब उससे आप कहेंगे, अब सीधी सी बात है, वो बेचारा भी नहीं कहेगा क्योंकि उसको मालूम है कि गाड़ी आपकी है। तो मगर मैं भी वो इजाज़त भी नहीं, वो ये भी कह सही कि नहीं मेरा सेहत तो ख़राब हो सकता है, मैं ठीक नहीं हूँ, आपको मालूम नहीं है उसके बारे में, उसका नेचर, तो थोड़ा ये उससे पोलाइट है। यानी कि अभी आपने सिगरेट नहीं जलाया होगा, अभी आपकी जेब में ही है, तो आप उसे कहेंगे कुड आई स्मोक हियर, कैन यू गार्ड मी, यानी कि उससे थोड़ा कहने से थोड़ा पोलाइट। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। देन देयर इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वो भी हमने पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया था। अब फर्क क्या है, ही कुड बी इंजर्ड, दैट कुड बी माई, दैट कुड बी माई बस। यहाँ थोड़ा पॉसिबिलिटी है, मगर कौन, मतलब कैन से थोड़ा प्रैक्टिकल। मिसाल के लिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला बचे, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, सीधी सी बात है, उसमें जो भी होगा मे बी वो भी जख्मी होगा, वो हो भी सकता है नहीं हो, बट प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। ही कुड बी इंजर्ड, वहाँ से गाड़ी आ रही है, आपको लग रहा है ये आपकी गाड़ी की तरफ आ रहा है, आप अंदर कमरे में हैं, हारन हो गई है, मे बी वो आपकी गाड़ी हो सकती है क्योंकि वो आपकी रोड की तरफ आ रही है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप कह सकेंगे दैट कुड बी माई बस, और दैट कुड बी माई कार और माई व्हीकल। आई थिंक दैट यू मे हैव अंडरस्टूड कुड। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे फिर से इनको एक्सप्लेन करना है, डोंट वरी, अभी तो मैं आपको टेबल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नाउ मे। अब मे का देखो यूज़ क्या है। मे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने वहाँ भी देखा, वो भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होते थे। अब फर्क क्या है वही हमें देखना है। आस्किंग फॉर एंड गिविंग, यहाँ आपको पहले पूछना है, आपको मालूम नहीं है कि वो परमिशन आपको देंगे या नहीं। मिसाल के लिए वही एग्जांपल, आई विल रिपीट द सेम एग्जांपल। आपको फिर से सिगरेट जलाना है, मगर आप पैसेंजर बस में हैं, आपको क्या मतलब मालूम है, वो मतलब बहुत सारी वहाँ आपको ऑब्जेक्शन भी कर सकेंगे, नहीं यहाँ तो नहीं जलाना है, ये तो मतलब कानूनन जुर्म है, इट इज़ नॉट लॉफुल, इट इज़ अनलॉफुल। या आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब आप क्लास में एंटर होते हैं, आप सर से कहते हैं सर मे कम इन। आपको मतलब कभी अगर उसको गुस्सा होगा, वाई वाई डू यू सो फा, आप कहाँ थे अभी तक, आई विल नॉट अलाउ यू। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं उस पर डिपेंडेंट कर रहा है कि वो आपको इजाज़त देगा या नहीं। आपको पूरा मतलब श्योरिटी नहीं होती है कि वो आपको इजाज़त देगा या नहीं। इन शॉर्ट, मे कम इन, यू मे गो नाउ। आप जाइए या ना जाइए आप पर है, मगर मैंने आपको इजाज़त दिया है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। पॉसिबिलिटी वो भी हमने पढ़ा था, ऊपर वाला भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ। गुड, ये भी पॉसिबल, और फैक्चुअल हकीकत पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। समझ आ रहा है क्या आप सर, क्या आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। ही मे बिकम नेक्स्ट मिस वर्ल्ड। अब एक बात है, हर कोई मिस वर्ल्ड मत बन सकेगा। आप किसी लड़की को बुलाएंगे, ये भी वो भी नहीं, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, फैक्चुअलिटी होनी चाहिए ना, तब ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड। एनी गर्ल कैन बिकम मिस वर्ल्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ द आइडिया। यहाँ भी मतलब आइडिया का पॉसिबिलिटी है कि जिस गर्ल में वो मतलब कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रेट्स हो, ये जो मतलब इसके लिए होते हैं, तो वो बन सकेगी।
इसी तरह है अब माइट भी पॉसिबिलिटी, मगर कौन सी पॉसिबिलिटी? रिमोट, यानी कि अब द फ्यूचर। रिमोट का ये माने है फ्यूचर का, नियर फ्यूचर। आई माइट बिकम डायरेक्टर नेक्स्ट ईयर, यानी कि माइट पॉसिबिलिटी है, ये मालूम नहीं है आप बनेंगे या नहीं, प्रमोशन के चांसेस हैं, अब फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ, मगर किस पॉसिबिलिटी के लिए? नियर फ्यूचर के। इसी तरह ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है माइट, परमिशन, मगर ज़्यादातर हम इसको आजकल लैंग्वेज में परमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट इन द पास्ट वी वर यूजिंग दिस in case of permission also, but at present it is not mostly used in case of permission. Might I smoke here? ये भी ठीक है, मगर मैंने आपको पहले ही कहा है कि आजकल हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करते। शैल और विल हमने पढ़ा था वहाँ टेनिस में भी, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अगर हम शैल और विल को इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, तो वो मतलब टेनिस में हम करते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ भी कहा था कि हम मॉडल ऑक्सिलरीज में इसको मतलब अपोजिट में भी, रिवर्स में भी, वाइस वर्सा में भी इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस देने के लिए। जैसे मैंने आपको वहाँ कहा है आई शैल नॉट कम कॉलेज टुमारो, मे बी देन आई विल कम। आप कहेंगे सर आपने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं कहूँगा मुझे काम फिर नहीं पड़ी इसलिए मैं आया। अगर मैं आप ऐसे कहूँ आई विल नॉट कम कॉलेज टुमारो, इसका माने कंप्लीटली मुझे कल ज़रूरी काम है, मुझे नहीं आना है। फिर मैं अगर आऊँगा तो मतलब वो मैंने आपके वादे के खिलाफ किया था, क्योंकि मैंने विल डिटर्मिनेशन यूज़ किया था। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, अगर हम उसको वाइस वर्सा करेंगे तो वहाँ वो स्ट्रेस दे रहा है, डिटर्मिनेशन कह रहा है। अब इसने क्या कहा है? इंटेंशन ऑफ स्पीकर, यानी कि फर्स्ट पर्सन ओनली, जो आपको मालूम है आई शॉन्ट बी लॉन्ग, वी शैल इन्फॉर्म यू सोन, यानी कि जो आपको मैंने कहा है आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं इन सेमी लीगल लैंग्वेजेस। जो मैंने भी आपको कहा है कि मतलब ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मगर स्पीकिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर राइटिंग में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, वाइस वर्सा में। द ड्राइवर शैल, यहाँ तो मतलब अगर देखेंगे तो विल होना चाहिए, प्रोड्यूस हिज हर लाइसेंस ऑन डिमांड, यानी कि इनको तो लाइसेंस ज़रूर निकालने चाहिए। यहाँ शैल स्ट्रेस दिखा रहा है। अब शैल का शुड, मगर आपको याद रखना है ये उसका पास्ट नहीं है। आप कहेंगे अब हम जहाँ हमने शैल इस्तेमाल किया है प्रेजेंट में, वहाँ शुड को पास्ट में इस्तेमाल करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, ये याद रखना। शुड ओब्लिगेशन दिखा रहा है, ओब्लिगेशन फर्ज जिसको हम कहते हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, समझ आ रहा है? ओब्लिगेशन, इट इज ओब्लिगेशन, मगर आपको याद रखना है जो शुड है ये मॉरल ओब्लिगेशन दिखा रहा है, अखलाकी ओब्लिगेशन। यानी कि इफ यू विल नॉट ओबे योर पेरेंट्स द गवर्नमेंट विल नॉट टेक टास्क अगेंस्ट यू, यानी कि कानून आपके खिलाफ नहीं जा सकेगा अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये मॉरल ओब्लिगेशन, ये फर्ज बनता है हमें, ये अखलाकन हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, अब है ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, मे बी, जैसे हमने वहाँ का मैंने कहा कि बहुत सारों का सेम रूल होता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले ही लेक्चर में। कार्तिक शुड बी इन चेन्नई बाय नाउ, मे बी कार्तिक इस वक्त चेन्नई में होगा, मे बी, यानी कि यहाँ शुड मैंने इस्तेमाल किया, मे बी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शुड का यहाँ माने पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। शुड हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। इसी तरह विल, मैंने आपको कहा है कि विल हम बाकी के साथ ही शी यू वी के साथ इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, मगर मैंने फिर से भी यही कहा है अगर वाइस वर्सा में करेंगे तो वहाँ स्ट्रेस दे देगा। तो विल यहाँ दिखा रहे हैं विलिंगनेस, ही विल डू इट फॉर यू आस्क हिम, यानी कि वो करने के लिए तैयार है। ये ज़रूरी सी बात नहीं है कि मतलब आप ये फ्यूचर दिखा रहा है, ये मतलब इसकी विलिंगनेस दिखा रहा है। ही विल यानी कि वो करने के लिए तैयार है। विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे, क्या आप में ये विलिंगनेस है? हाँ, 1 सेकेंड, आई विल कंप्लीट दिस चार्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, डोंट वरी। हाँ, इंटेंशन में भी फर्स्ट पर्सन, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था
अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी कभी कभी हम उसके साथ भी इस्तेमाल करते हैं विल, मगर वहाँ ज़्यादा इंटेंशन होगा, यानी कि जो आपको इंसान मैंने कहा वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आई प्रोमाइज आई कैन, आई प्रोमाइज आई विल कॉल यू टुनाइट, यानी मैंने कहा आपको वादा दिया शाम को मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा, कि ज़रूर। वी वोंट बी लॉन्ग, अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, यानी कि ये स्ट्रेस यहाँ दे रहा है, जो आपको मैंने पहले ही कहा है। कभी कभी ये प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रेडिक्शन आपको मालूम है, मतलब जो हम पहले ही पेशेंट को ही करते हैं, फोरकास्ट करते हैं व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। द गेम विल बी फिनिश्ड बाय नाउ, यानी कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में अब गेम खत्म हुई होगी। हाँ, ये स्पेसिफिक के लिए और टाइमलेस के भी लिए, मतलब जहाँ टाइम हमें नहीं दिखा रहा है। मिसाल के लिए ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, ये तो किसी वक्त भी, विल फ्लोट या फ्लोट्स, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। यहाँ हम विल फ्लोट्स भी, ये विल फ्लोट भी लिख सकते हैं तो फ्लोट्स भी लिख सकते हैं, दोनों, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी दिखा रहा है इसका, मतलब यानी कि पहले ही कि हम इसमें क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन। ये तो सीधी सी बात है, जब हम पानी में तेल डालेंगे तो वो उस पर फ्लोट करेगा। इसी तरह है वुड भी विलिंगनेस, वो भी हमने कहा था विलिंगनेस। वुड यू प्लीज लेट अस गो, वुड विलिंगनेस, क्या आपने चाहते हैं आप जाएंगे। मैंने कहा ना कि बहुत सारों का सिमिलर यूज है। आपको एग्जाम में लड़ाई नहीं करनी है। मैंने वुड लिखा है, आपने विल लिखा है, आपका गलत है, मेरा ठीक है। कभी कभी मतलब दोनों ठीक होते हैं, समझ आ रहा है, कभी कभी दोनों, उसका भी इसका भी, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सेंटेंस होते हैं, वो हम परेगा नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि सेंटेंस में फुल मीनिंग नहीं होती है, हमें पूरी तरह मालूम नहीं होता इसका कहने का मतलब। अगर पैराग्राफ होगा, फुल पैराग्राफ होगा, तो वहां हमें समझ में आएगा ये हमें क्या यूज करना है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी इन द पास्ट, जो कोई काम आप पास्ट में आप कर रहे थे, जो आपको कोई कैरेक्टर पास्ट में था, उसके लिए भी हम वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। शी वुड सिट स्टेयरिंग आउट एट द सी फॉर आवर्स, यानी कि उसका ये कैरेक्टर था, इसका ये हैबिट था, हम हैबिट ही कहेंगे। वो सी समंदर की तरह पास्ट में देख रही थी, मगर पास्ट में, आज नहीं। मस्ट, ये मस्ट भी ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। जैसे हमने वहाँ शुड, जैसे हमें वहाँ का है कि शुड ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, ये मस्ट भी ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। मगर मस्ट आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, मस्ट ऑब्लिगेशन दिखा रहा है मगर कंपलसरी ऑब्लिगेशन। जहाँ वहाँ मैंने आपको कहा अगर आप पेरेंट्स को खिदमत नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, कुछ नहीं, आपकी विलिंगनेस। मगर अगर आप कानून के खिलाफ कुछ कहेंगे तो वहाँ आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। वहाँ मस्ट इस्तेमाल होता है, कंपलसरी जो होगा वही मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय फ्राइडे, ये जरूर हमें कंप्लीट करनी ही होगी। मस्ट दिखा रहे हैं नेसेसरी, जरूरी, समझ आ रहा है। यू हैड टू कंप्लीट द वर्क बाय फ्राइडे, और हैड हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं मगर प्रेजेंट में हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट मतलब यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, ऑफ द स्कूल, ऑफ द कॉलेज। मस्ट है कंपल्सरी, अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड मस्ट, दैट इट इज नेसेसरी, कंपल्सरी। इफ यू विल नॉट डू, द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। लॉजिकल नेसेसरी जो मैंने कहा, ही मस्ट बी लाइंग, मुझे लग रहा है, यानी कि लग रहा है, लॉजिकली लग रहा है, वो शायद झूठ कह रहा है, यानी कि ही हैज बी लाइंग बट ही कैन नॉट बी लाइंग। हाँ, मगर ज़्यादातर हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में हम ज़्यादा इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। और देखो अब आर भी ऑब्लिगेशन, मैंने कहा ना कि बहुत सारे का सेम यूसेज है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा फ़र्क है, मगर वो फ़र्क हमें तब पता चलेगा जब फुल पैराग्राफ होगा। सेंटेंस में ज़्यादातर हमें ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए सेंटेंस में आप आर भी लिख सकते हैं मस्ट, फिर देखना है पहले। अब आप कहेंगे सर आपने कहा है तो हमने 8, हमने कहा कोई भी लिखो, नहीं, थोड़ा सेंटेंस देखनी भी है। यू आर टू सी द डॉक्टर, यानी कि आपको देखना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है आप पर। आर्ट एंड शुड और लेस
फोर्सफुल देन मस्ट एंड हैव टू, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यानी कि 8 तो मतलब उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं है, ये थोड़ा मतलब दिखा रहा है शुरू से ज़्यादा, और मस्ट सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। प्रोबेबिलिटी, कितने बार हमें प्रोबेबिलिटी किया है, दे आर टू बी फिनिश्ड बाय नाउ, शायद उन्होंने किया होगा, मुमकिन है, प्रोबेबल है, शायद। मैंने पहले भी कहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उनका बहुत सारे यूसेज मिलते जुलते हैं। हाँ, नीर और डियर को भी इनको हम अगर देखेंगे, इनको हम ज़्यादातर क्या कह रहे हैं, इनको हम ज़्यादातर सेमी ऑक्सिलरीज कहते हैं, और यूज्ड टू को भी हम सेमी वोवेल कहते हैं। तो अब थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नीर इमीडिएट नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इमीडिएट नेसेसिटी, जब आपको कोई इमीडिएट होगी नेसेसिटी, वी नीड टू बाय आवर टिकट्स नाउ, यानी कि इस वक्त आपको नेसेसिटी नहीं है टिकट खरीदने की। मगर ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, जो यहाँ तक मैंने पढ़ाया है तो यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मगर फिर भी थोड़ा इल्मियत होनी चाहिए। परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, नॉट टू डू समथिंग, बट किसी ये नेगेटिव में इस्तेमाल होते हैं, नेगेटिव परमिशन में। यू नीडेड टू कम टू कॉलेज टुमारो, यानी कि आपको परमिशन नहीं दिया जा रहा है आज कॉलेज जाने के लिए, नेगेटिव में। डियर है, यानी कि ये तो आपको मालूम है, डियर हम यूज़ करते हैं, आपको आप में हिम्मत कैसे हुई है, हाँ, यानी कॉलेज टू डू। वी डेयरंट गो, दिया हमें ये हिम्मत नहीं है, कॉलेज नहीं हम वहाँ जाएंगे। ही डियर नॉट कंप्लेन, उसमें ये हिम्मत नहीं कि वो कंप्लेन करने के। डियर आई आस्क हिम, मुझे में क्या वो हिम्मत है मैं उसे पूछूंगा, ये तो मतलब मेरे पहले का है, ज़्यादा ये पूछे नहीं जा रहे। इसी तरह यूज्ड टू बी हम एज सेमी ऑक्सिलरी, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर्स ऑक्सिलरी के कुछ नहीं है, मगर ये हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल में ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसने भी लिखा है यूज्ड टू इज़ कॉल्ड ए सेमी ऑक्सिलरी एंड इट ऑकर्स ओनली इन द पास्ट, जो मैंने पहले कहा है। रेफर टू पास्ट इज सिंपल, इट रेफर्स टू द स्टेट और हैबिट इन द पास्ट विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो मैंने आपको वहाँ भी शायद भी कहा होगा जब हमने टेंस पढ़ा है, मैंने वहाँ आपको कहा है कि पास्ट में हम वो हैबिट यूज़ करते हैं, उन हैबिट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो हम आजकल नहीं कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे थे। मगर मैंने आपको वहाँ भी कहा होगा हम यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मिसाल के लिए, ही यूज्ड टू स्टडी फॉर आवर्स, यानी कि उसका पास्ट का हैबिट था। ही यूज्ड टू बी एन एक्सलेंट एक्टर, वो अच्छा एक्टर था। ही वॉज फॉर्मली एन एक्सलेंट एक्टर, या ही वॉज वंस एन एक्सलेंट एक्टर। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अब तो मुझे भी थकावट हो गई। हाँ, once again I say that still we have not completed the moral auxiliaries. It was with the help of the table, in brief, in short. Now I will explain in detail. अगर मगर किसी को मतलब इतना ही चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो इतना भी काफ़ी है, ये भी फिर उसके लिए काफ़ी है। मतलब अगर वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कंप्लीट करना चाह रहा है तो फिर ये भी काफ़ी है आपके लिए। मगर बट वंस अगेन I recommend you that this channel Salim Sir's Academy English for All, it is free of cost channel that you have not to pay anything. You have to watch the videos upon the YouTube, and it is, I also once again say that it is for everybody, for businessmen, for anybody, for literate, for illiterate, for educated, for everybody. But the syllabus here will be covered of the 10th 12th JK Bose, BG, that is graduation from Kashmir University, and especially for JK SSB. But what you have to do one thing, that you have to subscribe this channel here, and you have to watch all the videos from beginning to end, and you have to share the video with your relatives, with your friends, with your colleagues. And I hope that you will watch all uploaded videos upon this. Okay, thanks. Okay, good afternoon now. Okay, thanks.